Coming to capital city, Delhi is once again gasping for breath. Air quality in the national capital has slipped into the severe category, with the AQI now crossing the 400 mark at several locations, which has triggered fresh health concerns for millions. Now, the air quality forecast has clearly failed. On Tuesday, a thick grey haze blanketed Delhi and parts of NCR, reducing visibility and making breathing difficult for many. At about 4 p.m., the 24-hour average AQI stood at 412, firmly in the severe zone, and a sharp deterioration from 373 recorded at the same time on Monday. So, in fact, viewers, what we are witnessing right now is the worsening of the air quality. Now, according to the data from Central Pollution Control Board, Delhi and neighbouring Noida are currently recording the worst air quality levels in the entire country. Severe pollution means serious health risks even for healthy individuals, and especially dangerous for the children, the elderly and those with respiratory or heart conditions. And therefore, doctors are advising people to avoid their outdoor activities, wear masks, especially N95 masks, and keep their windows closed as much as possible. Viewers, with the winter setting in and the pollution levels spiking earlier than expected, the big question now remains, where are the emergency measures? Despite GRAP 4 in force, we're not witnessing any considerable relief when it comes to air pollution. And as the Delhi NCR chokes under severe air pollution, a new reality is now setting in, that clean air is no longer free, it's being bought. Air purifier sales across the national capital region have shot up nearly 5 times. It is driven by toxic air levels and growing health fears. And with AQI readings staying in the severe zone, NCR residents are now increasingly dependent on air purifiers. It's not just in bedrooms, in fact, but living rooms, offices, and even children's room to breathe a safer air indoors. Retailers here say that the demand for air purifiers has surged far beyond supply. Dealers report that customers who once considered air purifiers a luxury now see them as a basic necessity, much like a refrigerator or a fan. But the surge in sales also raises a troubling question: why are citizens being forced to buy machines just to breathe clean air? And here's a special report by my colleague Puneet Sharma on these developments. चैम्बर बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में 500 तक क्रॉस हो चुका है, यानी कि वायु प्रदूषण इस वक्त अपने गंभीर स्थिति को भी पार कर चुका है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने और नोएडा में भी ग्रैप 4 लागू किया गया, यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके तहत तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं जिससे कि जो वायु प्रदूषण है उसमें कमी आए और लोगों को सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, आंखों में जो जलन हो रही है, इन सभी से निजात मिले। लेकिन फिलहाल दिल्ली में और एनसीआर में AQI 500 से ज्यादा पहुंच चुका है और यही वजह है कि शुद्ध हवा के लिए लोग अब दिल्ली से दूर भी जा रहे हैं। जो लोग दिल्ली में कारोबार कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उन लोगों को शुद्ध हवा के लिए अब एयर प्यूरिफायर के सहारे रहना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग तेजी से एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं और इसकी जो बिक्री है वो पिछले कुछ समय में 4 से 5 गुना तक बढ़ चुकी है। दुकानों पर पहले ये जो एयर प्यूरिफायर होते थे वो रखे रहते थे, इक्का दुक्का लोग आते थे खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही अक्टूबर के बाद दिल्ली और एनसीआर में हवा जहरीली हुई तो इन एयर प्यूरिफायर की जो डिमांड है वो बेहद तेजी से बढ़ी है। जो सीटीआई है उसका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में लगभग 5 गुना तक एयर प्यूरिफायर की जो बिक्री है वो बढ़ चुकी है। लोग अपने घरों में महंगे से महंगे एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं ताकि उनको जहरीली हवा से निजात मिले, शुद्ध हवा मिल सके। AQI लेवल जो 500 पार हो चुका है वो घरों के अंदर 50 तक आए ताकि उनके बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को कोई भी दिक्कत ना हो। Viewers, meanwhile, a sharp political war of words has now erupted over the pollution crisis in Delhi NCR. The Aam Aadmi Party has hit back strongly at the Lieutenant Governor's letter to former Chief Minister Arvind Kejriwal, in which the LG held the AAP government responsible for the worsening air quality. And now speaking exclusively to News 9, AAP's national media in charge Anurag Dhanda
launched a scathing attack on the LG. His comments signal an intensifying blame game as Delhi continues to choke under severe air pollution, with political temperatures now rising alongside AQI levels. Here's more in this exclusive conversation with News 9's Jitendra Bhati. एलजी को मुख्यमंत्री रह चुके दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की याद आई है। 15 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उनकी तमाम खामियां गिनाई है। कहा कि 10 साल तक सरकार रही, कुछ नहीं किया और सोच जो है उनकी वो नेगेटिव है, मिलने नहीं आए, तमाम शिकायतें करी हैं। मेरे साथ अनुराग ढांडा जी। अनुराग जी, मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, ऐसी फ्रिक्वेंट चिट्ठी आती थी तो कहते थे एक और प्रेम पत्र आ गया। इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहले तो मेरी जिज्ञासा ये है कि दिल्ली के लोगों को इतने भयंकर प्रदूषण में छोड़ के गुजरात अय्याशी के लिए गए हुए एलजी साहब वापस आ गए हैं क्या, या चिट्ठी वहीं से लिख रहे हैं? मतलब ऐसा कैसा प्रेम पत्र कि गुजरात में बैठ के और दिल्ली के लिए चिट्ठी लिख रहे हो, खुद वहाँ अय्याशी कर रहे हैं, यहाँ लोग प्रदूषण में मर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि दिल्ली के प्रदूषण में रह के गए कुछ दिन और दिल्ली के लोगों के लंग्स पे असर हो रहा है, दिल्ली के लोगों के फेफड़ों पे असर हो रहा है, दिल्ली के बच्चों की, बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य पे असर हो रहा है। मुझे लगता है एलजी साहब का के दिमाग पे असर हो गया दिल्ली के प्रदूषण का, इनकी याददाश्त चली गई। इनको यही नहीं पता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, रेखा गुप्ता जी और बीजेपी की सरकार है और वो मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा अभी स्थिति है उसके लिए कह रहे हैं कि आपने 10 सालों कुछ नहीं किया। बाकी वो कह रहे हैं कि जब सत्ता में थे तब भी आपकी अप्रोच नेगेटिव थी और अब जब सत्ता में नहीं है तब भी आप नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो योगी जी 2 नमूने जो ढूंढ रहे थे उसमें से एक तो चलो सारी दिल्ली को पता है, 10 महीने में उसने सिद्ध कर दिया कि भाई हाँ मैं हूँ। आज दूसरे नमूने ने हाथ उठा के कहा है कि अरे मेरे पे ध्यान दो, मैं भी हूँ। ये इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन बड़ा नमूना है। लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। लोग कह रहे हैं कि अगर सवाल पूछना है तो दिल्ली में जो सरकार बैठी है उससे पूछो ना कि क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं कर पा रहे, इनके अंदर हिम्मत नहीं है।